Tell me, is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Is it clear or blur? Yes. क्लियर सर Clear. Okay. क्लियर दिखाई दे रहा Let's see. How international markets have been transformed. This is the impact of globalization. All international brands sell their consumer goods in India. This is the impact of globalization. All global brands come in India and sell their product. As a result, consumers have a wide choice. That means globalization means I have written in the board, and here is transform of Indian market. After globalization, how Indian market transformed. First one is all the universal brands get available in the Indian market. Second, consumers have a wide choice. This has become possible because of globalization. Clear? So last point आप देख रहे हो, but it was not the same. Some 30 years ago, only few brands were available to the consumer. तो ये आगे मैं बताता हूं, पहले आप ये देखो. कंज्यूमर्स मार्केट इन इंडिया बिफोर ग्लोबलाइजेशन. जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो ग्लोबलाइजेशन कब नहीं था? बिफोर 30 years, दैट मीन्स 1991. अर्लियर 1991 ग्लोबलाइजेशन इंडिया में नहीं था. उस वक्त आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल थे? आप अगर बाइक की बात करें तो दो तरह के बाइक अवेलेबल थे. फर्स्ट वन इज बजाज स्कूटर एंड राजदूत एज अ मोटर बाइक. डू यू नो the name of Rajdoot and Bajaj scooter? I think all of you have aware of it. And as a car, only Ambassador is available in the Indian automobile sector. ठीक है, तो ये सब जो है एक लिमिटेड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल थे बिफोर ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो यानी आप कंज्यूमर के पास चॉइस कम थे. इंटरनेशनल प्रोडक्ट की स्कैर्सिटी थी. लोग जो एबल थे वो इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन जो एबल नहीं थे वो इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट नहीं कर सकते थे. तो जो आपके पास अवेलेबल थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन कंपनीज के द्वारा जो प्रोवाइड होते हैं, वो प्रोडक्ट ही आप परचेज कर पा रहे थे. ये जो आप देख रहे हो एक एग्जांपल है, स्मॉल एग्जांपल रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर, व्हीकल सेक्टर एंड टेलीविजन. आज के डेट में आपके पास टेलीविजन का वेराइटीज, चॉइस ऑफ वेराइटीज है, बहुत सारे अल्टरनेट हैं. लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही कंपनी थी गवर्नमेंट की, ET&T, जिससे परचेस करना कर सकते हो. अदरवाइज आप
नहीं कर सकते, आपके पास कोई दूसरे चॉइस नहीं थे। दिस इज द ग्लोबलाइजेशन बिफोर, सॉरी, दिस इज द मार्केट ऑफ इंडिया बिफोर ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, consumer brands in India after globalization. Look at different type of cycles, different type of two-wheeler, different type of cars. That means number of varieties, number of company provide their, sell their product in Indian market because of globalization. तो ये आपका इंडियन मार्केट है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ग्लोबलाइजेशन का क्या बेनिफिट है मार्केट में? एनीवन आंसर मी? स्टूडेंट्स, students, are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Is it visual? Yes, sir. Very less number of participant is okay. देखो ये आपका डिफरेंसेस है बिफोर ग्लोबलाइजेशन एंड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? So the difference is in Indian market, number of companies. Anyone? Are you raising question? No. Okay. This is the market of India after globalization. That means in market, varieties of product available of global companies entered in Indian market and provide their product. So customer have number of choices. So they have get more sophisticated, high tech technology, benefit of these type of companies. ठीक है? Now, this is the definition of globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries. Globalization क्या है? डिफरेंट कंट्री से जो इंटरकनेक्शंस होते हैं रिगार्डिंग ट्रेड इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है? तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से और मोर देन वन कंट्रीज बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है, दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। Now, देखिए अब हम चैप्टर के अकॉर्डिंग आते हैं। As consumers in today's world, some of us have wide choice of goods and services before us. That means nowadays the customers of Indian market have varieties of choice. Because of globalization, we are getting latest technological, we are enjoying latest technologies, product and services of world class provided by the different countries, different global countries also. New models of automobiles can be seen in Indian roads. Gone are they, Ambassador and Fiat were only cars in Indian roads. Before globalization, only two brands available in India,
and after globalization, varieties of cars, that is world-class cars, world-class product available in Indian market. Such wide range choice of goods in our markets is a relatively recent phenomenon. So it is a matter of transformation due to globalization. ठीक है, आपके पास वाइड रेंज ऑफ चॉइस है मार्केट में, तो ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, मैं इसे यहां से स्टॉप कर रहा हूं. लेट्स सी. देखिए, आपका एक टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री. ग्लोबलाइजेशन में किसी प्रोडक्ट को ग्लोबल क्यों बनाया जाता है, व्हाई? फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द multinational corporations, page number 56. Multinational corporations, that means those companies which are doing their business activity in more than one country is called multinational companies or multinational corporation, in short MNC. MNCs is a company that owns control productions in more than one countries. It not only sells the finished product globally, but the goods and services are produced also globally. That means MNCs not only sell goods at a large or at a global scale, but also produce globally. दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा. MNC जो होते हैं, जो वो मोर देन वन नेशंस में अपना बिजनेस करते हैं, तो वो MNCs कहलाते हैं. तो MNC सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट को ही सेल नहीं करता. जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कंट्री इंडिया में अगर कोई बिजनेस करता है, वो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोड्यूस बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा इंडिया में और सेल करेगा मोर देन वन कंट्रीज. नॉट, वो प्रोडक्शन भी ग्लोबल करेगा, यानी मोर देन वन कंट्रीज का यूज करेगा या हेल्प लेगा उस प्रोडक्ट को बनाने में. ठीक है, दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अर्न ग्रेटर प्रॉफिट. तो ये क्यों ऐसा किया जाता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मोर देन वन कंट्रीज में उसके पार्ट्स और सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया जाता है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अर्न more and more profit at global scale. That's why multinational companies goods and services produce at global. Clear? बहुत सारे अब किस समझ में आ रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होते हैं? आपका जो टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, उससे रिलेवेंट है ये. Now, example. Production is divided in small parts across the globe to take advantage of their closeness to the market, cheap labor and raw material. The MNCs may have save around 50 to 60% in the production and increase productivity. This is the MNCs spread production. स्प्रेडिंग प्रोडक्शन ऑफ नो. देखिए एक मोबाइल, पहले आप एग्जांपल समझो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं एज पर योर बुक. ठीक है, एमएनसीज क्या होता है, उसका प्रोडक्शन, उसका सेल. तो कोई भी प्रोडक्ट जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है नोकिया मोबाइल.
Clear? The spreading production of Nokia mobile, that means technology development in USA, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को इस बेसिस पर बनाते हैं कि वो ग्लोबल सेल किया जा सके। तो ग्लोबल सेल करने के पर्पस होता है कि प्रॉफिट इंक्रीज करना। तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना मस्ट होता है, यानी वो चीप यानी कम से कम कॉस्ट पर किसी प्रोडक्ट को बनाए, ये जरूरी है। फॉर दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन यूएसए, देखिए अब ये डिफरेंट कंट्रीज का हेल्प लेता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन यूएसए, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी को वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट करेगा, बिकॉज देयर इन दैट कंट्री टेक्नोलॉजी इज वेरी डेवलप्ड, एडवांस and available at very low rate. Headquarters control from Finland, that means the Nokia mobile is a company of Finland, वो फिनलैंड कंपनी का, फिनलैंड का एक कंपनी है। तो जिस कंट्री का कंपनी होता है तो कंट्रोल और मैनेज उसी कंट्री से होते हैं, यानी हेडक्वार्टर्स उसका वहां से होता है। जैसे आप अगर एग्जांपल लो, टाटा इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एमएनसीज, रिलायंस इज आल्सो an example of MNCs having headquarters in Mumbai, India. So in case of Nokia, their home country is Finland and headquarter is there. तो कंट्रोल और मैनेज वो फिनलैंड से करता है, और हार्डवेयर इन चाइना, यानी जो उसके कंपोनेंट होते हैं उस सेलफोन का वो चाइना से प्रिपेयर करता है, बिकॉज देयर हार्डवेयर production of hardware parts is very low in China, यानी वहां चाइना में मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में कम है, फैसिलिटीज हैं, जिसकी वजह से वहां पर हार्डवेयर प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। तो वो प्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर ऑफ मोबाइल इज फ्रॉम चाइना, सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया एंड यूएसए। सो because of availability of cheap software, cheap that means at a low cost and very advanced software available in India and from Microsoft in USA. So ये 4 countries का help लेकर वो एक प्रोडक्ट बनाता है, that means production at global, और सेल also at global, वो दूसरे कंट्री में भी सेल करता है, ग्लोबल लेवल पर सेल करता है। तो ग्लोबल प्रोडक्शन का बेनिफिट होता है रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर कॉस्ट रिड्यूस होगा तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, ग्लोबल कंपटीशन वो फेस कर सकता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोवाइडर है। आप देखते होंगे किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट में उसी प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होता है जो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस करने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होता है जो जहां पर कम से कम रेट में उस कंपोनेंट को बनाने का फैसिलिटीज है, आपके पास ऑप्शन है उसको यूज करना और प्रोडक्ट को ग्लोबली प्रोड्यूस करना, जिससे आप कंपटीशन फेस कर सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन भी अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ सी द पेज 56. Production across countries, that means middle of the 20th century, production was largely organized within the countries. What crossed the boundaries of these countries were raw materials, foodstuff and finished product. पहले जो कंट्रीज थे जिसके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपनी कंट्री से बाहर निकला। दैट मीन्स इन सर्च ऑफ the market to sell their surplus product, they search outside the country and sell their product. That's why they are getting more and more profit and having a large size in form of their wealth.
क्लियर? सर हमारा नेक्स्ट क्लास है। Time is, oh, okay.